न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। राजनीतिक हिंसा की वजह से पांडेसर, जामुड़िया और आसनसोल के बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लिया बीजेपी दफ्तर में शरण। बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। तो राजाई यदि बोले যে আমি অত্যাচারী হয়ে যাব, প্রজা কি করবে? কিছু। आसनसोल के गोपाल नगर में एक बंद पड़े घर से 15 लाख से अधिक के गहने और नगद की चोरी। आसनसोल डीआरएम ऑफिस से कुछ दूरी स्थित जोगी स्थान में 2 मूर्तियों की चोरी। মুখ্যমন্ত্রী সে বাংলার মেয়েকে কি উন্নতি করবে? সে বাংলার মেয়েকে নিজের সুরক্ষিত থাকতে পারে না, আবার সে বাংলার মেয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे बंगाल में हिंसा हो रही है। यह हिंसा खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को केंद्र कर की जा रही है। इस हिंसा की आग से आसनसोल, पांडेसर, जामुड़िया और शिल्पांचल के अन्य जगहों के बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक झुलस रहे हैं। धमकी, मारपीट के डर से लोग घरों को छोड़ने को विवश हुए हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों ने बीजेपी के पश्चिम बर्धमान जिला कार्यालय में शरण लिया है। इनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी है। इन लोगों ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। বাড়ি ছাড়া করেছে, আমার ইজ্জত নেওয়ার ধমকি দিয়েছেন, এমনকি ওনারা নিজেরা পারছে না তো মহিলাদেরকে মারধর করাতে পাঠাচ্ছেন আমার বাড়ির সামনে। আমার শ্বশুর মশাই বয়স্ক প্যারালাইসিস পেশেন্ট, তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে, আমার এই মেয়ে, এই ছেলেকে নিয়ে আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায় যাব। এই বাংলার মেয়েকে চাই এই মুখ্যমন্ত্রী, সে বাংলার মেয়েকে কি উন্নতি করবে? সে বাংলার মেয়েকে নিজের সুরক্ষিত থাকতে পারে না, আবার সে বাংলার মেয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী। আমাকে তৃণমূলের লোক হুমকি দিচ্ছে। আমি আজ 3 দিন ঘটছে না, রবিবার থেকে আমাকে হুমকি দিয়েছে। সোমবার দিন ছিলাম, সোমবার দিন রাতে থেকে ভোর থেকে আমি পালাই, ভোরবেলা থেকে ভোর 3টে থেকে না হুমকি দিয়েছে। বাড়ির সামনে আসছে, আমাকে ঝামেলা করতে আসছে, আমাকে দরজা লাগানো আছে, সেই দরজার মধ্যে আসছে, সব মহিলাদেরকে নিয়ে চলে আসছে। তারা একটা আশ্বাস দিয়েছেন, দেখি পুলিশ প্রশাসন কি করে। পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে কোনো হেল্প করছে না। আমি বিজেপি করি, আমি শক্তি প্রমুখ। আমার বাড়িতে বিরাট চর্চায় অত্যাচার, ঘর দুয়ার সমস্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আপনার টিএমসির হারমিন বাহিনীরা এসে 150 300 জন এসে ঘর দুয়ার সমস্ত ছিন্নাচ করে দিয়েছে। আমার গাড়ি ঘর দুয়ার নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আমার ছেলেকে মেরে অত্যাচারে শেষ করে দিয়েছে। যেমন আর আমি মন্ডল 2 এর শক্তি প্রমুখ। বিজেপির করার এই অপরাধ বিজেপি করলে বলছে কাউকে থাকতে দেবো না। আমার বাড়ি চিচুড়ে গ্রাম। আমাকে তো উপপ্রধান হুমকি দিয়েছে, রেপের হুমকি দিয়েছে আমাকে। এটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এটা কেন ওনারা নেতাটা কাজে লাগাচ্ছে কোথায়? একটা মহিলার উপরে নেতাটা কাজে লাগাচ্ছে যে আমি নেতা, আমার দেহতে কাজে লাগাচ্ছে। কেন ওরা কাজে লাগাচ্ছে আমাকে? বাড়ি ছাড়া আমার সবাই, আমার ছেলে মেয়ে, আমার হাজবেন্ড সবাই। আমাকে কেন একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার নেতারা কেন আমাকে হুমকি দিচ্ছে? আমার ইজ্জতের হুমকি কেন দিচ্ছে? আমাকে মারুক, ঠিক আছে। অনেক আমাদের প্রচুর 150 পরিবার এসেছি আমরা, যেখানে সেখানে জঙ্গলে যেখানে সেখানে আছি আমরা। बहरहाल बृहस्पतिवार की रात को बीजेपी नेताओं ने इन लोगों से भेंट की और इनकी आपबीती सुनी। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, नव निर्वाचित विधायक अग्निमित्रा पाल, दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लखन घरुई, आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी रहे कृष्णेंदु मुखर्जी समेत अन्य पार्टी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के कथित हमले की वजह से घर छोड़ने वाले पार्टी समर्थकों से भेंट की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें फिर से घर पहुँचाया जाएगा। इन नेताओं ने आपस में बैठक कर आगे की रणनीति पर भी विचार किया। बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा करने के लिए हमला किया और कहा कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। এই মুহূর্তে বিজেপির এই নির্বাচনের পরে যে অবস্থা হয়েছে, বিজেপির কর্মীরা সব চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেছে। এখন আমি তারা নিজেরা যে সন্ত্রাস মমতা ব্যানার্জি শুরু করেছে, চিরকালই করেন। আমি এখন তাদের কথা শুনবো না তাদেরকে নির্দেশ দেবো যে ভাই ভলেন্টিয়ার বাহিনী বানাও? আজ অযৌক্তিক কথা বলে ক্রেডিট নেওয়ার অভ্যেস কোনোদিনই ছিল না, এখনও বলবো না। আমি দেখছেন তো এখানে কী অবস্থা, প্রত্যেকটি মানুষ তারা কষ্টের কথা আমাকে বলছে এবং তাদের যে রাগ সেটা সম্পূর্ণ মানে তারা সংসদকে দেখছে, তারা বলছে দাদা আপনি কি করবেন? সত্যি আমি কি করবো? আমার সঙ্গে তার বাহিনী নেই,
সেটার জন্য যা করার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা তার দিকে করার সেটা সম্পূর্ণভাবে করার চেষ্টা করছি। এবং মমতা ব্যানার্জি যদি মনে করেন যে সংবিধান বলে কিছু নেই, তাহলে বিরাট বড় ভুল করছে। ওনার রাজধর্ম পালন করা উচিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি এখন ভলেন্টিয়ার বাহিনী বাড়ি বাড়ি অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া কোথায়, আমাদের কার্ডার কোথায়, তারা তো সব বাড়ি ছাড়া। पांडेश्वर समेत आसनसोल शिल्पांचल में चुनाव बाद अलग अलग जगहों में हुई हिंसा के संबंध में पांडेश्वर के बीजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसी को घर छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व राजा है और हम प्रजा है, लेकिन जब राजा ही अत्याचारी हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। না, পরবর্তী পদে কি করার আছে এটা তো দেখুন, এখন তো ওনারা শক্তিশালী, ওনারা ক্ষমতায় আছেন। আমরা তো হিংসার জবাব হিংসা দিয়ে দিতে পারবো না, কোনোদিন দেবও না, কোনোদিন দিও নি। আমরা তো অতীতেও বলেছিলাম যে আমরা জিতলে কাউকে ঘর ছাড়া হতে দেবো না। তো এটা তো এখন ওনারা রাজা, আমরা প্রজার মতন আছি। তো রাজাই যদি বলে যে আমি অত্যাচারী হয়ে যাবো, প্রজা কি করবে? কিছু করার নেই। আবার রাজা বাছার যখন সময় আসবে তখন প্রজা সিদ্ধান্ত নেবে যে রাজাকে যখন আমরা রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সে প্রজার খেয়াল রেখেছিল না প্রজার উপর অত্যাচার করেছিল, মানুষ তখন দেখবে আর কি করার আছে। पांडेश्वर और जामुड़िया इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार ने चुनाव बाद हुई हिंसा के बाद से आसनसोल के बीजेपी जिला मुख्यालय में शरण ले रखी है। यहां वे परिवार संग आए हैं, जहां इन लोगों ने पार्टी नेताओं को अपनी पीड़ा बताई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भी कहा है कि किस तरह से तृणमूल के लोगों ने उन पर हमला कर घर से भागने के लिए बाध्य कर दिया है। ভোট দিয়েছি সিপিএম কে, 10 বছর দিয়েছি টিএমসি কে, কিন্তু কোনোদিন এমনি হয় না। যা অবস্থা এখন এই যে ভোট পড়েছে বুথে, আর যা অবস্থা মারপিট, আমাদের ঘর ছাড়া, জুয়ান মেয়েকে, প্রেগনেন্ট মেয়েকে রাখতে গেলাম, আমাদের ঘরে 11টার সময় দিনে হামলা, তখন ভাঙচুরা করলো। তারপরে 3:30টার সময় আমাদের ঘরে লুটমার করে, আমি নাম বলতে পারবো সবাইকে, আর কি আমাদের কান্ধাতে বয়ে বয়ে সব জিনিসগুলা, ছড়া গ্রাম বাবু কামারডাঙ্গার সব জিনিসগুলা বয়ে বয়ে সব জিনিসটা নিয়ে গেল আমাদের ঘর থেকে। আমরা মমতাজি সে অনুরোধ করছি कि আমাদেরকে ভালো করে ঘর ঘুরে যায়, আমরা ভালো করে থাকি, আমরা এইটুকু চাইছি। तो अभी जो इलेक्शन जो हुआ तो वोट कम मिला, बूथ में लीड किए हम, इसलिए बोलता है कि तुमको न रहने देंगे न तुम बीजेपी करेगा, तुम जब भी आओगे हम तुमको मार डालेंगे, सबको बकस देंगे, तुम्हारा जितना भी कमेटी में कार्य करता है 40 लड़का उसको बकस लेंगे, लेकिन तुमको बाल बच्चा भी बकस लेंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार देंगे, जहाँ भी हो जैसे भी हो जितना दिन हो, लेकिन तुमको मारेंगे। ये संतोष पासवान बोल रहा है। और उस दिन जो वोट गिनती हुआ 2 मई को, तो हम लोग घर में टीवी देख रहे थे, एकाएक 6:30 बजे संध्या समय में लोग आया, 25-30 लड़का, 2 बम पटका दरवाजा पर, उसके बाद सिक्सर भी हाथ में लिए हुआ था, अंधेरा था, हम छीन नहीं पाए, और उसके बाद गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ करना शुरू किया, बाथरूम तोड़ दिया, दुकान था, गुमटी था, गुमटी के ऊपर छप्पर सब तोड़ डाल दिया। और अभी भी जो है शाम को शाम आता है, रात में कल भी घर तोड़ दिया। इस तरह से मैंने रोज को रोज घर जाना करता है। गाय था उसको खोल दिया, बकरी मैंने सीता खोल दिया, बकरा मुर्गी सब पकड़ के खा गया, जैसे सब चित्ती बित्ती कर दिया। हम गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, छोटा मोटा दुकान है, हम ना उनके खिलाफ कभी भाषण दिए ना कुछ किए, लेकिन वो ना कुछ बिगाड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हम पर शोषण कर रहे हैं कि यही मैन है, इसको ख़त्म कर दो, डालूबान 8 नंबर जो है 7 नंबर बुद्ध वो समाप्त हो जाएगा। भाई के भागे ने बालके तो मार देता। कौन संतोष टीएमसी है, हम लोग बीजेपी है, इसलिए क्या हरा हुआ पार्टी है तो क्या है, इसलिए बनते का छप्पर पर जहाँ देख भागे, कोई 10 मुहिम में दिया गाड़ी वाला, तो मारिए दिए ताकि मार देंगे प्रदीप सिंह के। बोले मेरा बाल बच्चा क्या होता, डरने लगा, डर क्या करते हैं, मेरा बीमारी शरीर कौन देखेगा मेरा। पांडेश्वर समेत आसनसोल शिल्पांचल में चुनाव बाद अलग अलग जगहों में हुई हिंसा के संबंध में पांडेश्वर के बीजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसी को घर छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व राजा है और हम प्रजा है, लेकिन जब राजा ही अत्याचारी हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। না, পরবর্তী পদে কি করার আছে এটা তো দেখুন, এখন তো ওনারা শক্তিশালী, ওনারা ক্ষমতায় আছেন। আমরা তো হিংসার জবাব হিংসা দিয়ে দিতে পারবো না, কোনোদিন দেবও না, কোনোদিন দিও নি। আমরা তো অতীতেও বলেছিলাম যে আমরা জিতলে কাউকে ঘর ছাড়া হতে দেবো না। তো এটা তো এখন ওনারা রাজা, আমরা প্রজার মতন আছি। তো রাজাই যদি বলে যে আমি অত্যাচারী হয়ে যাবো, প্রজা কি করবে? কিছু করার নেই। আবার রাজা বাছার যখন সময় আসবে তখন প্রজা সিদ্ধান্ত নেবে যে রাজাকে যখন আমরা রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সে প্রজার খেয়াল রেখেছিল না প্রজার উপর অত্যাচার করেছিল, মানুষ তখন দেখবে আর কি করার আছে। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon. आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर जगह जगह हो रहे हमले के विरोध में बीजेपी के लीगल सेल की तरफ से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त को 6 सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि जल्द से जल्द हिंसा पर लगाम लगाया जाए। बीजेपी लीगल सेल के वरिष्ठ सदस्य पीयूष कांति गोस्वामी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सीपी ने भरोसा दिया है कि तत्काल जरूरी कदम उठाएंगे। ছত্তিশগন্ডা খোট্টাড্ডি নিমসা আলীনগর পাণ্ডবেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় জামুরিয়া এবার বানপুর কুলটি রানীগঞ্জ এই সমস্ত জায়গায় অনেক লোককে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। তাদের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়েছে। একজনের বাউন্ডারি দেয়াল জেসিপি দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। তারা ঘর ছেড়ে আমাদের জেলা অফিসে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদে আমরা আইনজ্ঞ, আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। যার জন্য আমরা একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটা ডেপুটেশন দিয়ে এসেছি কমিশনার সাহেবকে, এবং কমিশনার সাহেবের কাছে আমরা 6 দফা দাবি রেখে এসেছি যে এগুলো প্রতিকার যদি ইমিডিয়েট না হয় তাহলে হয়তো আমরা অনেক বড় আন্দোলনের পথে আমাদের যেতে বাধ্য করব। এটা কারা দাবি জানালো? আমরা লিগ্যাল সেলের তরফ থেকে সবারই হয়ে দাবিটা জানালাম। সমস্ত যারা ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী তাদের স্বার্থে আমাদের লিগ্যাল সেল কি আসানসোল কোর্ট, আসানসোল জেলা, এখন আসানসোল দুটো ইউনিট, আসানসোল কোর্ট ইউনিট, একটা দুর্গাপুর ইউনিট, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির লিগ্যাল সেল। সেই লিগ্যাল সেলের তরফ থেকে আমরা এইসব করলাম। সিপি সাহেব কি কিছু আপনাদের সিপি সাহেব আশ্বাস দিলেন, তিনি বললেন তাদেরকে ঘরে ফেরাবার ব্যবস্থা করছি, আর অশান্তি হবে না। অশান্তি হলে পরে থানাতে ফায়ার করবেন, থানা স্টেপ নেবে, অ্যাকশন নেবে। लेकिन इधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया है। तृणमूल कांग्रेस के उत्पल सिन्हा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किसी के साथ मारपीट या जबरदस्ती नहीं की गई है, यह झूठ बात है। সম্পূর্ণ মিথ্যে। শীতলা গ্রাম আমাদের পরিবার, ওরা হতে পারে কেউ বিজেপি, আমিও ইলেকশনে লড়েছি, আমি হেরেছি, ওখানকার মানুষজন তারাই আবার আমার সাথে থাকে, বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় তারা। এই রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক মঞ্চে আমরা আমাদের যা বক্তব্য আমরা পেশ করব তার ভিত্তিতে জনাদেশ তৈরি হয়। আমরা মারধর করে সিপিএম মারধর করে তৃণমূলকে কি হয়েছে, সিপিএম ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা জানি সেটা কি হয়। বিরোধী পক্ষকে মারধরের রাজনীতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন কালকেও স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, কোনো রকম রাজনৈতিক অস্থিরতা বরদাস্ত করা হবে না, এবং আমার ব্লকেও সেই নির্দেশ আছে। আমি সংবাদ মাধ্যমকে বলবো আপনারা ব্যক্তিগতভাবে স্পটে যান, গিয়ে যদি দেখেন কোনো মানুষ তার ঘরের বাইরে কোনো ক্লাবে বা কোনো জায়গায় লুকিয়ে আছে, আমি দায়িত্বর সঙ্গে বলছি সে মাথা তুলে বিজেপি করবে, মাথা তুলে কংগ্রেস করবে, মাথা তুলে সিপিএম করবে। আমাদের কি রাজনৈতিক যে যার নিজের মতে করতে পারে। আমাদের এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি, এটা মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কেন এই ধরনের অভিযোগ কেন করছে? এটা সামনে আরেকটা নির্বাচন আছে, হাওয়া গরম করে রাখতে চাইছে। বাবুল সুপ্রিয়র তো মিথ্যে কথা বলা ছাড়া কাজ নেই। বাবুল সুপ্রিয়, আদার্স যা সব নেতৃত্ব শব্দ বিজেপিতে গেছে, তাদের যা চরিত্র সেই চরিত্র অনুযায়ী তারা কথা বলছে। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेट, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस, इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। चुनाव नतीजा आने के बाद जहां राजनीतिक हिंसा खूब हो रही है, हमले के बाद घर से लोगों को भागना पड़ रहा है, वहीं चोर उचक्के भी कानून व्यवस्था का खूब माखौल उड़ा रहे हैं। आसनसोल उत्तर थाना इलाके के गोपाल नगर में एक घर खाली पाकर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने इस घर में 15 लाख रुपए के जेवरात समेत 70,000 रुपए नकदी ले गए। घर के मालिक का नाम है चंद्रिका प्रसाद। वे आसनसोल के मुंशी बाजार में फलों के थोक व्यवसायी है। चंद्रिका अपने रिश्तेदार की मौत के बाद अपने गांव उत्तर प्रदेश के जौनपुर गए थे, लेकिन उसी दौरान उन्हें खबर मिली कि उनके घर में चोरी हो गई। किसी तरह वे जल्दबाजी में घर पहुंचे और जो देखा तो उससे उनके होश उड़ गए। घर में सामान इधर उधर बिखरे थे। अलमारी खुली थी जिसमें गहने और नकदी निकाल लिए गए थे। चंद्रिका प्रसाद ने क्या कहा, आइए देखते हैं। गाँव में मेरा भाभी डेथ कर गया था। कहाँ पर? तो जौनपुर में। तो 2 तारीख को हम टिकट देहरादून पकड़ के 2 तारीख को रात को 12 बजे रात को हम चले गए। इसके बाद फिर हमारे साले घर बना रहे हैं, इनको बोला कैलाश जरा घर देखना मेरा। तो आगे देखे घूम के तो बोले रुकिए ये तो ताला टूटा हुआ। हाँ बोलिए। एक मिनट। हाँ फिर साला को बोला कि जरा मेरा दरवाजा चेक कर लो, देख लो जरा घूम के। तो आए तो देखे तो बोले अरे जीजा तो दरवाजा लोग तोड़ दिया है। फिर वो अंदर जाके देखे तो बोले तो सब सामान निकाल ले गया। फिर इसके बाद हम वहाँ से प्राइवेट गाड़ी पकड़े हैं रात को 4 बजे भोर शाम को 2 बजे रात को हम यहाँ आए। क्या क्या सामान गया? सामान जेवर गया ज़्यादा 70,000 रुपया कैश था हो गया। सामान एक मेरा जैकेट था, वो ठंडी में नया जैकेट लिया था वो ले गया। जेवर कितना का गया? जेवर कम से कम 15 लाख का गया। 10 साढ़े 10 बजे तो जीजा फ़ोन किए गांव से कि अरे मेरा घर थोड़ा देखते रहना। हम कहे हाँ ठीक है देखते हैं, ठीक है। तो उनसे बात होने के बाद हम गए गेट पे। तो गेट पे ध्यान से देख रहे हैं ताला लटका हुआ, लेकिन वो शटर का टूटा हुआ। फिर शटर थोड़ा सा हटाए, फट से खुल गया। फिर गेट देख रहे हैं तो गेट का भी ताला टूटा हुआ गेट। फिर थोड़ा सा खोले, फिर भक से वो भी खुल गया। फिर आगे कदम बढ़ाए, देख रहे हैं सारा रूम का गेट खुला हुआ। थोड़ा सा कदम बढ़ा के आगे देख रहे हैं तो गेट पर सब बिखरा हुआ, सब सोने का जो डब्बा है सब खुला हुआ है, चारों तरफ बिखरा है। तो फिर फ़ोन लगाए हम वहाँ पर कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, जल्दी अब आइए। तो उधर से गाड़ी पकड़ के 2 बजे रात में आए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चुनाव खत्म होने के बाद आसनसोल शिल्पांचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राजनीतिक हिंसा के साथ घरों से लेकर मंदिरों में चोरी हो रही है। आसनसोल डीआरएम ऑफिस से कुछ फासले पर स्थित जोगी स्थान मंदिर में बृहस्पतिवार की रात को चोरों ने 2 मूर्तियां चुरा ली है। हालांकि जब चोरी की घटना हुई उस समय मूर्ति से कुछ दूरी पर मंदिर के पुजारी ललित गिरी और उनके पुत्र सोए हुए थे, लेकिन चोर इतने दबे पांव आए कि उन्हें इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। कृष्ण भगवान की कांसे की मूर्ति 30 साल पहले बनारस से लाई गई थी, तब उसकी कीमत 7,000 रुपये थी। पुजारी का कहना है कि चोर संभवतः दीवार फांद कर आए होंगे, क्योंकि मंदिर के गेट का ताला टूटा नहीं था। रात में हम लोग यहाँ पे सोते हैं, हम सोए हुए थे, मेरा लड़का है ये भी सोया हुआ था। तो हम लोग जब सुबह उठे हैं 4 बजे करीब में, तो देख रहे हैं कि भगवान का मूर्ति वहाँ नहीं है और सामान सब बिखरा हुआ है वहाँ, जिसमें कि बाबा का पंचारती, दिया, घंटी, उनका एक मुकुट था गोपाल का, वो मुकुट भी वैसे ही है, मुकुट वगैरह कुछ लिया नहीं गया है। सिर्फ गोपाल जी का एक मूर्ति है जो बड़ा मूर्ति है, लगभग
1.5-2 kg का है। कांसा का मूर्ति बहुत पुराना मूर्ति था, वो गया है। और एक राधे कृष्ण का मतलब ज्वाइंट मूर्ति था, वो 2 मूर्ति लेके गया है। बाद बाकी और जितना सामान है सब वैसे ही है, सिर्फ मूर्ति लेके गया है। और ये घटना लगभग आपका 11:30 बजे हम लोग सोए हैं, तो लगभग 11:30 से लेके और मतलब 3 के बीच का ये घटना है। क्या आप लोग को पता नहीं चल पाया कौन टूका? नहीं, हम लोग को तो किसी तरह का कोई मतलब आहट भी नहीं मिल पाया कि किधर से आया नहीं आया। ताला गेट का लगा ही हुआ था, ऊपर से मतलब हो सकता है ऊपर से ये जंप करके आया हो, लेकिन हम लोग को कुछ ये नहीं लग पाया। मंदिर भी टूटा हुआ था, मंदिर का ताला टूटा हुआ था ना? मंदिर नहीं, मंदिर का ताला जिस तरह से था उस तरह से बंद था, लेकिन जब वो लोग जाने लगे हैं तो ताला का चाबी जो है लेके चला गया है। मंदिर का ताला का चाबी जो है लेके हम लोग अंदर में बंद ही है, चाबी लेके भी चला गया है। आसनसोल के 87 नंबर वार्ड के डामरा और काली पहाड़ी इलाके के तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शुक्रवार को कहीं से खबर मिली कि आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी फिर से तृणमूल कांग्रेस में आने की जुगत बिड़ा रहे हैं। यह खबर कितनी सच है और कितनी झूठ या तो पता नहीं, लेकिन डामरा और काली पहाड़ी इलाके के तृणमूल कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर आ गए और जितेंद्र तिवारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आसनसोल बाजार के निकट स्थित पार्टी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और पार्टी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि उन्हें जितेंद्र तिवारी मंजूर नहीं है क्योंकि उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हम लोग आया जितेंद्र तिवारी के अगेंस्ट में बात करने के लिए। यहाँ पर हम लोग का खबर आया है, 87 नंबर वार्ड में खबर किया, जब मलेदा का एप्लीकेशन किया, जब हमको पार्टी में फिर से लीजिए। दासूदा का भी पास कोई आदमी को भेजा था जो हमको तृणमूल पार्टी में लिया जाए। हम लोग को कान में आने के बाद में हम लोग सुबह में सब मीटिंग किया, सब बोला चलो हम लोग जाके दासूदा को कान में दे, इसको सेकंड बार और तृणमूल पार्टी में उसको जैसे ना लाए। कहा कि वो गद्दार है, तृणमूल में रह के वो इतना रुपया कमा लिया, कोयला में, बालू में, पत्थर में, टेंडर बेच के कॉर्पोरेशन का, वो ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप भी था, करोड़ों रुपया कमा के वो चला गया बीजेपी में। अब बीजेपी में जब उसका रिजल्ट खराब हुआ, फिर दीदी आया, अब वो चाह रहा फिर आके हम कमाएंगे। इसलिए हम चाहते, हम लोग सब चाहते हैं जो सेकंड बार वो उसको ये मौका ना मिले। अगर वो कभी हम लोग देख लेंगे जो आएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे।